Hello students, welcome back to our channel Ocean of Dentistry. Today we are going to discuss in detail about the vesicobullous lesion. Already we have uploaded a video lecture on the vesicobullous lesion, the important terminology that we will be using here in this lecture. So if you are not aware of that important terminology, please go and watch to our video that have been uploaded on our channel. So now let's come to our topic, that is vesicobullous lesion. The vesicobullous lesion, as I have already told you all in the lecture 1, that this vesicobullous lesion has been divided into the two words, that is vesicle and the bullous. Just for the revision, the vesicle is nothing but a clear fluid filled blister like lesion that is less than 1 centimeter in diameter. कहने का मतलब यह है कि छोटा छोटा जो हमारे ऊपर फोड़े हो जाते हैं, कहने का मतलब एक छोटा सा जो आपका यहाँ पे अल्सर टाइप का हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेसिकल. उसमें फ्लूइड भरा होना चाहिए. और यदि यही छोटे छोटे वेसिकल जब आपस में ड्यू टू द इंटरएपिथेलियल सेल जंक्शन लॉस ये आपस में अगर कोलैप्स कर जाए एक दूसरे से और अंदर ही अंदर एक बड़ा सा फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर बन जाए जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज बुल्लस और बुल्ला. So now come to the classification, which is very important and it is asked in every examination as a long note question in the university examination like that. Define the vesicobullous lesion, okay? Classify the vesicobullous lesion and discuss in detail about the pemphigus, pemphigoid, erythema multiforme or any other vesicobullous lesion, oral lichen planus or any herpes infection. So now come to the classification. There are total 3 types of classification. Okay? 3 classification है जिसमें कि पहला होता है on the basis of the appearance. कि appearance infection जो है वो कब हुआ, किस basis पे appearance हुआ, that is. जिसमें आएगा acute and the chronic. Acute और chronic का मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको इस स्टेज में बताने की जरूरत है कि acute क्या होता है, chronic क्या होता है. Acute sudden onset, chronic long term से, दैट इज एक्यूट क्रोनिक का एक बेसिक मीनिंग होता है. अब ये एक्यूट मल्टीपल लीजन नाम से ही क्लियर है कि एक्यूट है, सडन ऑनसेट हुआ है, मल्टीपल बहुत सारा लीजन है, बहुत सारे अल्सर हैं. ओके, नाउ इसका जो एग्जांपल जाएगा आप डायग्राम में देखो. पहला हर्पीज वायरस इंफेक्शन. हर्पीज वायरस इंफेक्शन देखो, याद रखना एक चीज कि वायरल इंफेक्शन हमेशा जो होता है दैट इज एक्यूट इन नेचर. ओके, so this is the herpes virus infection. They can be either primary herpes virus infection, secondary herpes virus infection. As I have already told in lecture 1, there are herpes virus infection HSV1, HSV2, etc. And in the coming lecture when I will discuss with you the herpes virus infection, out of all the 80 species of the herpes, total 8 species ऐसे हैं जो कि infection cause करते हैं. यदि मैं अभी रिवाइज आपको करवाऊं तो उसमें पहला होगा HSV1, HSV2, कॉक्सैकी वायरस, एप्स्टीन वायरस, HHV8, HHV6, HHV7. HHV8 से कापोसी सार्कोमा, HHV6 से हेरी ल्यूकोप्लेकिया, वो डिस्कस करूंगा मैं आपसे ल्यूकोप्लेकिया का जब लेक्चर लूंगा तब. उसके बाद कॉक्सैकी वायरस हो गया, एप्स्टीन वायरस हो गया, CMV वायरस हो गया, साइटोमेगालोवायरस. तो ये टोटल 8 स्पीसीज हो गए जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं. दूसरा जो एक्यूट में आता है दैट इज कॉक्सैकी वायरस. तीसरा वर्सेला जोस्टर, मीजल्स, एरिथमा मल्टीफॉर्मी. सबका डायग्राम आप देखते जाओ, वहां से कोरिलेट करते जाओ. एरिथमा मल्टीफॉर्मी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एरिथमा मल्टीफॉर्मी जो होता है दैट इज अ गन शॉट लाइक लीजन और यू कैन से दैट आइरिस लाइक लीजन. देन एलर्जिक स्टोमेटाइटिस, ओरल अल्सर और द अनुग, that is acute necrotizing ulcerative gingivitis and the hand foot and mouth disease. hand foot और mouth disease भी एक वायरल इंफेक्शन ही है. तो टोटल जो एक्यूट में आ गया क्या क्या हो सकता है, that is herpes वायरस इंफेक्शन, कॉक्सैकी वायरस इंफेक्शन, वर्सेला जोस्टर इंफेक्शन, मीजल्स, एरिथमा मल्टीफॉर्मी, एलर्जिक स्टोमेटाइटिस, अनुग एंड द हैंड फुट एंड माउथ डिजीज. नाम से क्लियर है, हाथ में, फुट में एंड ओरल कैविटी में इसका जो लीजन का जो सिम्टम है वो देखने को मिलता है. देन वी हैव द क्रोनिक वेसिकोबुलस लीजन. क्रोनिक जो कि बहुत लंबे समय से है,
पेम्फिगस हो जाएगा इसका एग्जांपल। पेम्फिगस का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो वहां पे। पेम्फिगोइड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। पेम्फिगोइड, दिस पेम्फिगोइड कैन बी सिकाट्रेसियल और बुल्लस। अब देखो पेम्फिगोइड भी मैंने अपलोड कर दिया है वैसे तो, बट आपको एक ब्रीफ देता हूं कि पेम्फिगोइड क्या होता है। देखो पेम्फिगोइड जो होता है एक ऐसा सब एपिथेलियल लीजन होता है, इसमें सब एपिथेलियल जो है क्लेफ्ट का फॉर्मेशन होता है, सेल टू सेल जंक्शन का लॉस्ट होता है। दो तरीके का होता है, बुल्लस पेम्फिगोइड और सिकाट्रेसियल पेम्फिगोइड। बुल्लस पेम्फिगोइड या सिकाट्रेसियल पेम्फिगोइड, सिकाट्रेसियल कहने का मतलब है कि जब ये हील होते हैं तो इसमें स्कार फॉर्मेशन होने का चांस होता है, ये स्कार फॉर्मेशन से हील करते हैं। सिकाट्रेसियल मींस स्कार फॉर्मेशन। तो दो हो गया पेम्फिगस पेम्फिगोइड, तीसरा हो जाएगा क्रोनिक हर्पीज इंफेक्शन एंड चौथा हो जाएगा लीनियर इम्यूनोग्लोबुलिन IgGA डिजीज। तो हमने अभी तक देखा एक बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनसेट, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनसेट और अपीयरेंस ऑफ द इंफेक्शन, दैट इज एक्यूट एंड द मल्टीपल। ओके, जो सेकेंड हमारा क्लासिफिकेशन होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कि क्लिनिक में कैसे प्रेजेंट कर रहा है आपका पेशेंट। नाम से ही क्लियर है कि क्लिनिक में जब पेशेंट आ रहा है तो कैसे प्रेजेंट कर रहा है आपके पास। तो दैट विल बी प्रीडोमिनेंटली वेसिकुलर, मतलब कि ऐसा कि वो डिजीज जो है जब पेशेंट आ रहा है तो वेसिकल के फॉर्म में डिजीज है, अभी बुल्ला नहीं बना है। लेकिन सेकेंड जो होगा दैट इज रेअकरिंग ओरल अल्सर एंड द प्रीडोमिनेंटली बुल्लस। मतलब कहने का यह है कि जब पेशेंट आपके क्लिनिक में आ रहा है तो पेशेंट जो है या तो वेसिकल के फॉर्म में आपको अपीयर कर रहा है, मतलब छोटे छोटे जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है उसमें अपीयर हो रहा है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है और वो ब्लैंच कर रहा है ऑन द प्रेशर, तो दैट विल बी प्रीडोमिनेंटली वेसिकुलर। लेकिन हो सकता है कि पेशेंट जो है आपके क्लिनिक में आता है तो आपको शो कर रहा हो कि दैट इज लाइक अ बिगर अल्सर, क्लियर फ्लूइड तो भरा हुआ है उसमें लेकिन साइज बहुत बड़ा है, तो आप कहोगे अच्छा ये बुल्लस फॉर्म में जा चुका है। एक पेशेंट मान लो कि आपके पास आता है पेम्फिगस का, छोटे छोटे अल्सर लेकर के आया, दैट इज प्रीडोमिनेंटली वेसिकुलर। वही पेशेंट बहुत लंबे टाइम के बाद आपके पास आ रहा है तो बुल्ला के फॉर्म में आ रहा है, मतलब डिजीज बहुत बड़ा हो चुका है तो उस टाइम आ रहा है, तो दैट इज पेम्फिगस इन द बुल्लस फॉर्म पेशेंट आ रहा है, दैट इज प्रीडोमिनेंटली बुल्लस। इसका जो प्रीडोमिनेंटली वेसिकुलर है उसका एग्जांपल जाएगा HSB, पेम्फिगस, पेम्फिगोइड, वर्सिला जोस्टर, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज एंड डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। ओके, चार डिजीज आपको याद रखना है, HSB हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, वर्सिला जोस्टर, उसके बाद हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, उसके बाद आपका हो जाएगा डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अब जब वेसिकल के फॉर्म में है, वेसिकल रप्चर होगा, उससे क्या निकलेगा फ्लूइड। ये फ्लूइड अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है किसी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को तो इंफेक्शन कॉज कर सकता है, मतलब ये इंफेक्शियस हो सकते हैं, मतलब किसी को इंफेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो एक क्लासिफिकेशन और मैं लिख सकता हूं कि दैट इज इन्फेक्शियस वेसिकोबुलस लीजन। तो इन्फेक्शियस वेसिकोबुलस लीजन का एग्जांपल कौन कौन बन जाएगा, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, पेम्फिगस, उसके बाद HSV, उसके बाद वर्सिला जोस्टर, ये सब इंफेक्शन जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, देन वी हैव द प्रीडोमिनेंटली बुल्लस, जो बिल्कुल अब पेशेंट जब आएगा तो बुल्लस के फॉर्म में आएगा। इनिशियली पेशेंट को कभी पता नहीं चलता पेम्फिगस हो जाए तो कि उसको पेम्फिगस हो गया है, क्योंकि पेशेंट क्या करता है अपने मन से दवा लेता है, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेता है और कोशिश करता है कि ये खुद से ठीक हो जाए। जब नहीं ठीक होता, जब बुल्लस बड़े बड़े अल्सर बन जाते हैं, बड़े बड़े क्लियर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल बन जाते हैं, तब वो आकर के बुल्ला के फॉर्म में जब वही लीजन बन जाता है तब वो पेशेंट आपके क्लिनिक पे आता है। तो इसका जो एग्जांपल जाएगा दैट विल बी पेम्फिगस, पेम्फिगोइड, दोनों टाइप का, सिकाट्रेसियल एंड द बुल्लस फॉर्म, एंड देन एरिथमा मल्टीफॉर्मी, लीनियर IgGA डिजीज, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एरिथमा मल्टीफॉर्मी मेजर को बोलते हैं, देन एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा एंड बुल्लस इम्पेटिगो, सबका डायग्राम है। लेकिन ये क्या होता है कि ये नॉन इन्फेक्शियस वेसिकोबुलस लीजन हो जाएंगे, ये रप्चर होगा तो ये किसी को इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। सो देयर कैन बी नॉन इन्फेक्शियस ग्रुप में इनको हम डाल सकते हैं, बट ऐसा कोई सच ग्रुप हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि पेम्फिगस भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, सो तो हम अभी तक हमने दो
बेसिस पे डिस्कशन कर लिया क्लासिफिकेशन को। पहला दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनसेट और द अपीयरेंस ऑफ इंफेक्शन, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। जो थर्ड हमारा है दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि आपको अगर कोई डिजीज है तो आप एज ए डॉक्टर उसका स्क्रैप लोगे, आप पैथोलॉजिस्ट के पास भेजोगे, वहां पे पैथोलॉजिस्ट वहां पे उसका हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको देगा कि हमारे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ये डिजीज कैसा आया है। तो दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको पता है पेम्फिगस जब आप पढ़ाओगे तो आपको उसमें याद आएगा और उसमें पढ़ाया जाएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेम्फिगस वेसिकोबुलस लीजन, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रा एपिथेलियल और इट इज सब एपिथेलियल। जो इंट्रा एपिथेलियल लीजन होता है उसमें आता है उसका एग्जांपल पेम्फिगस पहला, दूसरा आएगा दैट इज एचएसवी, वर्सियला जोस्टर, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज एंड द एरिथमा मल्टीफॉर्मी। तो आप बोलोगे कि जब मैं हिस्टोलॉजिकल फीचर देख रहा था तो उसमें मुझे देखने को मिला कि इंट्रा एपिथेलियल लीजन है, तो ये पेम्फिगस में देखने को मिलता है, दूसरा दैट इज एचएसवी में देखने को मिलता है, तीसरा दैट इज वर्सियला जोस्टर में देखने को मिलता है, चौथा दैट इज हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, उसके बाद एरिथमा मल्टीफॉर्मी। ओके, देन वी हैव द सब एपिथेलियल, एपिथेलियम के अंदर में। अब एपिथेलियम के अंदर में कोई लीजन है तो क्या उसका रप्चर होने का चांस ज्यादा है या कम है? कम है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक डर्मिस का लेयर है जो उसको बचा सकता है इस समय। ओके, तो पेम्फिगॉइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेम्फिगस और पेम्फिगॉइड में वाइवा में जनरली ये पूछा जाता है कि नेम अ लीजन दैट इज इंट्रा एपिथेलियल इन नेचर, दैट विल बी पेम्फिगस। नेम अ लीजन दैट इज सब एपिथेलियल इन नेचर, दैट इज पेम्फिगॉइड। उसके बाद आ जाएगा दैट इज एपोडर्मोलाइसिस बुल्लोसा, लीनियर आईजीजीए डिजीज, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म एंड डर्मल एरिथमा मल्टीफॉर्मी। तो अभी तक टोटल हमने जो डिस्कस किया दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें आ जाएगा एक्यूट, क्रोनिक, फास्टली करते हैं इसको रिवाइज, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट की अगर बात करेंगे तो उसमें जाएगा हमारा हर्पीज इन्फेक्शन, उसके बाद वर्सियला जोस्टर, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, उसके बाद कॉक्सैकी वायरस, मीजल्स एक्सेट्रा, देन ओरल अल्सर एंड अनु। उसके बाद आपका आ जाएगा दैट इज क्रोनिक। क्रोनिक की बात करेंगे तो पेम्फिगस, पेम्फिगॉइड, उसके बाद क्रोनिक हर्पीज इन्फेक्शन एंड लीनियर आईजीजीए डिजीज। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज फर्स्ट वन इज द प्रीडोमिनेंटली वेसिकुलर, सेकंड इज द प्रीडोमिनेंटली बुल्लस। प्रीडोमिनेंटली वेसिकुलर की अगर बात करते हैं तो एचएसवी, वर्सियला जोस्टर, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, उसके बाद डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म, ये इन्फेक्शियस वेसिकोबुलस लीजन होते हैं। जब बुल्लस फॉर्म की बात करेंगे प्रीडोमिनेंटली बुल्लस दैट विल बी आइदर पेम्फिगस, पेम्फिगॉइड, एरिथमा मल्टीफॉर्मी, एरिथमा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा एंड द बुल्लस इम्पेटिगो। Then we have the histological classification that is intraepithelial and the subepithelial. Intraepithelial की बात करेंगे तो पेम्फिगस आ जाएगा, एरिथमा मल्टीफॉर्मी हो जाएगा, उसके बाद एचएसवी हो जाएगा, वर्सियला जोस्टर हो जाएगा, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज हो जाएगा। जब सब एपिथेलियल की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला होगा आपका पेम्फिगॉइड, पेम्फिगॉइड के बाद आ जाएगा दैट इज आपका लीनियर आईजीजीए डिजीज, उसके बाद आ जाएगा एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा, देन बुल्लस इम्पेटिगो एंड डर्मल एरिथमा मल्टीफॉर्मी एंड डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। इसमें एक क्लासिफिकेशन और ऐड करता हूं मैं, दैट इज कॉल्ड एज रीअकरेंट ओरल अल्सर। ऐसे अल्सर जो कि बार बार हो रहे हो, वो भी एक वेसिकोबुलस लीजन ही है बट वो बार बार हो रहे हैं, तो उनका एक क्लासिफिकेशन अलग रख दिया। इसमें आएगा सबसे पहला एप्थस अल्सर, रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस, बैचेट डिजीज एंड रिकरेंट हर्पीज सिंप्लेक्स। बैचेट सिंड्रोम के नाम से एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी ऑन आवर चैनल ओसियन ऑफ डेंटिस्ट्री, और आप वहां से देख सकते हैं। एप्थस अल्सर पे भी एक वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द classification. In the next lecture we will start first with the primary herpes simplex infection, then we will discuss the shingles, zona or the herpes labialis. These are the two topics that we are going to discuss in the next lecture. So till now please do like, share and subscribe to our channel Ocean of Dentistry, and for notes you can join our Telegram channel, the link of which has been given in our description box, and you can follow us on the Instagram with the name Ocean of Dentistry, link of which has been given in our description. You can also follow our page on the Facebook, link given in the description. For the notes of other subject and for your
counter a question on the topic or any type of the doubt from your side, you can ask me on my WhatsApp group, that is Ocean of Dentistry Telegram group, and you're on your Instagram channel. So for this, you have to join our channel. You can join that from our description. Please, dentistry. Thank you. That's all for today. Keep studying, keep watching our video, keep supporting us.